हेलो स्टूडेंट, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਿਪੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮਰੀ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੂ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੋਰ ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਕਾਹਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਟਾ ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਵਿਦਨ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇਅਰ ਆਲ ਦ ਇਨਪੁਟਸ ਐਂਡ ਸਟੋਰਡ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਰ ਸਟੋਰਡ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆਗੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ as there can be mainly input device attached with the computer, all these devices input type input devices ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, but the CPU may not be able to process all the input in one go, मतलब कि CPU इकट्ठा ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। therefore a place is required to queue, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ queue up ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ these input and then process them one by one, मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ one by one ਆਪਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। all these input are queued up in the memory, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਪੁਟਸ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, the same case is there with the output produced by CPU, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। if the output device is busy in producing output, the other outputs are queued up in the memory, ਜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਰ ਸਟੋਰੇਜ ਐਂਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਰਿਟਰੀਵਲ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਟਾ। ਰਿਟਰੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। नेक्स्ट बेटा आ गया डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर एंटर्ड इनटू कंप्यूटर बाय इनपुट डिवाइस नीड टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी बिफोर द एक्चुअल प्रोसैसिंग। वही चीज़ां बार बार आ रही ने, डाटा के इंस्ट्रक्शंस होंगे जिहड़े कंप्यूटर के एंटर किए जाते इनपुट डिवाइसिस के द्वारा उन्होंने जरूरत पैंदी है भी स्टोर होण काहदे विच कंप्यूटर की मैमरी के प्रोसैसिंग तो पहले। ठीक है जी, द इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोसैस एंड द फाइनल रिजल्ट आफ्टर प्रोसैसिंग आल्सो नीड टू स्टोर। फाइनल रिजल्ट भी कंप्यूटर की मैमरी के ही स्टोर किए जाते। It is basically provide the space for storing of data and instruction before processing, during processing, after processing। वही काम है भी डाटे ਨੂੰ स्टोर करके रख दी हैगी कदों तक, प्रोसैसिंग तो पहला भी, प्रोसैसिंग के दौरान भी, तो प्रोसैसिंग तो बाद भी। ठीक है जी, द मैमरी ऑफ द कंप्यूटर डिवाइड की जाती टू पार्ट के प्राइमरी मैमरी एंड सैकेंडरी मैमरी। प्राइमरी मैमरी का की काम है, प्राइमरी मैमरी को आप मेन मैमरी भी बोलते हैं, तो सारे नहीं पता। It is mainly used by CPU, so it is termed as primary memory. It is also called a main memory। ये CPU के द्वारा यूज की जाती है बेटा, इनू ता करके प्राइमरी मैमरी के नाम नाल जानते हैं, इनू आपां मेन मैमरी भी कह सकते। इट इज डायरैक्टली कनैक्टेड टू CPU, डायरैक्टली सीधे तौर पर CPU के नाल की हुंदी हैगी, ये कनैक्ट हुंदी है। ठीक है बेटा, साडा डाटा ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड मैमरी कैन बी अकम्पलिश्ड डायरैक्टली। अकम्पलिश्ड हुंदा बेटा डन करना, पूरा किया जाता, डायरैक्टली अपना काम है जिहड़ा कर लेंदे, ट्रांसफर कर लेंदे CPU ते मैमरी दे जिहड़ा डाटा सेंड किया जाता। इट इज़ टाइप ऑफ मैमरी दैट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सिलिकॉन चिप। जिहड़ी चिप है सिलिकॉन की बनी हुंदी है। दी चिप आर क्रिएटेड बाय IC, इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा क्रिएट किए जाते बाय यूजिंग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। वधिया इंटीग्रेशन वाले टैक्नीक्स यूज करके इनू मतलब की किया जाता, क्रिएट किया गया। इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कंपैसिटी, ये जी स्टोरेज कंपैसिटी लिमिटेड होंगी है। इट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर नैसेसिटी टू परफॉर्म एंड ऑपरेशन। वही डाटा ते इंस्ट्रक्शनस नू स्टोर करके रखती है जिहदी आपां नू ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है। इट होल्ड बोथ द इंटरमीडिएट एंड फाइनल रिजल्ट, जिहड़े तुरंत ओहदी रिजल्ट आते हैं तो फाइनल रिजल्ट नू भी कंप्यूटर की प्रोसैसिंग के दौरान आपदे विच स्टोर करके रखती है। इट इज़ टाइपिकली हाई स्पीड मैमरी एंड वेरी कॉस्टली है। ये कि इहदी मैमरी की जिहड़ी स्पीड है तेज़ होंगी है तो बहुत ज़्यादा महंगी होंगी है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशन, ईच लोकेशन इन द स्टोरेज हैज़ अ यूनिक नंबर कॉल्ड स्टोरेज एड्रैस। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि ਜਿਹੜੀ स्टोर करने लोकेशन से जगह होंदियां बहुत ज़्यादा होंदियां ने बेटा। ठीक है, बट ये हर एक का नंबर अलग अलग होंगे जिन्होंने आप एड्रैस कहते हैं।
द सिस्टम असाइन अ यूनीक मैमरी लोकेशन टू ईच डाटा एलीमेंट, जिन्ना भी है मतलब कि डाटा एलीमेंट आप यूज कर रहे हर एक लोकेशन है जी मैमरी की इकली इकली दिंदी आ। जिवें तुहाडी क्लास के तुहाडी आइडेंटिफिकेशन तुहानूं रोल नंबर के अकॉर्डिंग दी गई, क्योंकि कई बार नाम भी तुहाडे दो हो जाते हैं क्लास के, तो तुहाडी आइडेंटिफिकेशन कॉलेज के किस तो जानी जाती है, तुहाडे रोल नंबर ते तुहाडी क्लास। द सिस्टम एक्सैस दीज डाटा एलीमेंट डायरैक्टली बाय मीनस ऑफ एड्रैस ऑफ पार्टिकुलर मैमरी लोकेशन, भी उन्होंने एड्रैस तो पता लग गया डाटा स्टोर किया। ठीक है जी। द वेरीज टाइप्स ऑफ प्राइमरी मैमरी दी आ गई, जिन्हों रैंडम एक्सैस मैमरी बोलते हैं, ये डाटा आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। रोम रीड ओनली मैमरी, सिर्फ डाटा आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है जी। कैश मैमरी, वर्चुअल मैमरी। इस तो बाद बेटा आ गया थोड़ी सैकेंडरी मैमरी की गल। सैकेंडरी मैमरी आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी बोलते हैं आप, एक्सिलरी मैमरी या मास स्टोर, बड़े तौर पर डाटे को स्टोर कर रखते हैं पक्के तौर पर। मेन मैमरी का काम होंगे भी बस सिर्फ प्रोसैसिंग टाइम ही डाटे को स्टोर करके रखती है, तो जी होंगी सैकेंडरी मैमरी पक्के तौर पर डाटे को स्टोर करती है। दिस मैमरी इज नॉट डायरैक्टली एक्सैसिबल बाय द CPU, डायरैक्टली CPU द्वारा ही नहीं की जाती। जिवें आप हार्ड डिस्क ला लो, उत्ते पक्के तौर पर डाटा स्टोर होता, फ्लॉपी डिस्क ला लो, मैगनैटिक टेप्स ला लो, ऑप्टिकल डिस्क ला लो, वाइडली यूज इन सैकेंडरी मैमरी डिवाइस। ये सैकेंडरी मैमरी के आधार दी जाती है। इच स्टोर डाटा प्रोग्राम इंफॉर्मेशन दैट आर नॉट concurrently being used by CPU but may required later for processing, पर इन्हां दी जरूरत पैंदी डायरैक्टली जो आप यूज करते उदों इहदी जरूरत नहीं। इट हैज़ अ स्लोअर एक्सैस टाइम, मतलब कि पढ़न का जिहड़ा तरीका ये फास्ट नहीं होंदी स्पीड दैन प्राइमरी मैमरी दे नालों। द टाइम टू रीड और राइट इनफॉर्मेशन इन मैमरी इज कॉल्ड एक्सैस टाइम, जिहड़ा टाइम लिखण दे लई जां इहनूं पढ़न दे लई यूज किया जाता उहनूं आपां एक्सैस टाइम कहंदे आ। इट हैज़ हायर स्टोरेज कैपेसिटी दैन प्राइमरी मैमरी दे नाल इहदे विच कैपेसिटी की है क्योंकि उहदे विच लिमिटेड दिखाई है। दिस काइंड ऑफ मैमरी इज लार्ज, स्लो एंड एक्सपेंसिव, ये बड़ी भी होंगी है पर की होंगी है फास्ट नहीं। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मीडिया, कई बार अपनी लाइट चली जाती है, अचानक से बंद होने के दौर में सेव कर लियो, अपने अरेज नहीं होगी। कंटेनिंग मच मोर इनफॉर्मेशन ना फिजिबल फॉर बहुत सारा कंटेन इनफॉर्मेशन स्टोर करने की मतलब योग्यता होंगी है। हिंस द टर्म मास स्टोरेज कैन बी यूज्ड साइनोनिम्स फॉर सैकेंडरी मैमरी, तां इहनूं मास स्टोरेज दे आ गया। Like a primary memory, many secondary memory devices are capable of storing information as well as retrieving it. ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਸ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਲॉपी ਡਿਸਕ ਹੋ ਗਈ, हैव द रीड राइट कैपेबिलिटी, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਆ ਗਿਆ, ਫਲॉपी ਡਿਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ऑप्टिकल हो गया। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ बेटा, कहने डायरैक्टली एक्सैस हो जाती है CPU के द्वारा प्राइमरी मैमरी, ये डायरैक्टली एक्सैस नहीं होती CPU के द्वारा क्योंकि पक्के तौर पर डाटे को स्टोर करती है। यदि स्टोरेज लिमिटेड होंगी है, यदि होंगी है हाई स्टोरेज, बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। यदा जो टाइम एक्सैस करना फास्ट होंगे, ये स्लोअर होंगी है। ठीक है। यदि कॉस्ट है जी हाई पैंती है पर बिट के अकॉर्डिंग, यदि कॉस्ट की होंगी है लो होंगी है। इट स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसैसिंग बाय CPU, ये डाटा स्टोर किया जिन्हों की लोड़ होंगी है CPU को, ये डाटे में पक्के तौर पर अपने स्टोर करती है, भी करंटली नहीं यूज की जाती CPU बट रिक्वायर्ड लेटर फॉर प्रोसैसिंग तो बाद यूज होती है। जिवें एग्जाम्पल है ये रैम ते रोम हो गया, हो गया, ये जिवें हार्ड डिस्क ते CD USB। ठीक है। इन्ना रीड कर लियो। मैमरी हेरेजिकल कल करवाऊंगी नेक्स्ट लैक्चर।